اب آگے پڑھے جی. دلیل اس دعوے کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. باقی رہا عمل، سو صورت عمل میں بسا اوقات بظاہر. اچھا جی، اچھا مجھے دیکھیے، میں نے آپ سے کل ختم الاولیاء کا ذکر کیا تھا نا، یہ میں اپنے ساتھ ختم الاولیاء لے کر آیا. صفحہ نمبر 31، دیکھو صفحہ نمبر 31، یہ میں نے پیلا کیا، وہی عبارت ہے. دیکھو ذرا وہی عبارت ہے کہ نہیں ہے یا کوئی اور ہے؟ علی کاشف صاحب دیکھو، جو کل پڑھی تھی وہی عبارت ہے کوئی اور ہے؟ فاعین امیہ سے دیکھو وہی ہے. اچھا یہاں ذرا آپ توجہ دے، ذرا ایک بہت بڑا رفع آیا. عبارت امام نانوتوی کی ہے، دلیل اس دعوے کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. باقی رہا عمل، سو صورت عمل میں بس اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں. اس پر ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے. اوہو، امام نانوتوی کی ایک اور گستاخی تاجر ناصر سے ہم نے نکال لی، ایک اور کفر ہم نے تاجر ناصر سے نکال دیا. بھئی کیا کفر نکالا ہے؟ اوہو، نانوتوی نے کیا کفر بک دیا معاذ اللہ کہ انبیاء صرف علم میں امتیوں سے بڑھ جاتے ہیں، عمل میں بعض اوقات امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے. تو امتی کو نبی سے بڑھانا ہے میرے بھائی، تو بہت بڑی گستاخی ہے. بڑا امتی بھی نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے؟ یہ تو اتنی بڑی گستاخی کر دی. اب یہاں ذرا ایک دو باتیں ذرا سمجھے، توجہ کریں ذرا. پہلی بات ہے، عبارت میں تھوڑی سی یہاں گڑبڑ ہے، یہ جو آپ کے پاس جدید نسخہ ہے. سو صورت عمل میں، یہ صورت عمل کا لفظ پرانے ایڈیشن میں نہیں ہے. ہمارے پاس جو پرانا ایڈیشن ہے اس کے اندر بھی نہیں ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کا جو چھاپا ہوا ایڈیشن ہے اس میں بھی نہیں ہے. یہ اس والے ایڈیشن میں ممکن ہے ان کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہو کہ جس میں یہ الفاظ ہوں. بہرحال ان الفاظ کے ہونے نہ ہونے سے اصل مدعا پر کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے حضرت امام نانوتوی کا مطلب تو سمجھے نا. امام نانوتوی کہتے کہ اصل کمال نبوت کمال علمی ہے، عمل میں بظاہر، حقیقت میں نہیں بلکہ بظاہر. دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی چیز باعتبار کم اور ایک ہوتا ہے کوئی چیز باعتبار کیف. اللہ کے ہاں کم کا اعتبار ہے یا کیف کا اعتبار ہے؟ کیف کا اعتبار ہے. دلیل دیکھ لو. اللہ کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوگا، گناہوں کا پنڈورا اس کا بھرا ہوا ہوگا، نیکی کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ جب یقین کر لے گا کہ میرا تو کام تمام ہو گیا، اللہ فرمائے گا رکیے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے. کہا مولا اس گناہوں کے پلڑے کے مقابلے میں وہ ایک نیکی کیا کرے گی؟ اللہ فرمائے گا کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے. وہ ایک رکا لایا جائے گا جس پہ کلمہ شہادت لکھا ہوگا. جب وہ رکھا جائے گا نیکی کے پلڑے میں تو گناہوں کے پلڑے پر کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا. اب جو اتنے وہاں کم دیکھو نا، پہاڑ کھڑا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں کم کے مقابلے میں رکا ہے، لیکن کیف اتنا ہے کہ اس پہاڑ پر غالب آ گیا جو ہے نا. سمجھے بات کو؟ حضرت امام نانوتوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات بظاہر امتی عمل میں بڑا ہوا نظر آتا ہے. اس بظاہر امتی کو عمل میں بڑا ہوا دیکھ کر کہیں تو اسے نبی پر فضیلت مت دے دینا کمبخت مارے، اس لیے کہ فی نفسی ہی عمل کمالات نبوت میں سے نہیں ہے. کیسے؟ دیکھو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک حج کیے، ساری دنیا کو معلوم. لیکن کتنے بزرگان دن گزرے امام صاحب سمیت، 50 سے اوپر حج کیے میرے بھائی. پاک پیغمبر علیہ السلام نے کتنے روزے رکھے ہوں گے، لیکن آپ میں سے کتنے جو 15 20 سال 25 سال سے روزے رکھے؟ حضور علیہ السلام نے کتنے عمرے کیے ہوں گے، لیکن آپ میں سے کتنے جو ہر سال عمرے پر جاتے ہیں بلکہ سال میں 2-3 دفعہ عمرے میں جاتے؟ تو بظاہر آپ عمل میں بڑے ہوئے ہیں، لگ رہے کہ نہیں لگ رہے میرے بھائی؟ لیکن آپ کا بظاہر عمل میں یہ بڑا ہو جانا یہ پاک پیغمبر پر فضیلت کا سبب نہیں، لیکن حقیقت میں جو کمال ہے وہ علم ہے، اس کو حاصل ہے، اس میں نہیں بڑھ سکتے. اور یہ بڑھنا بھی بظاہر ہے.
कैफ में सारी जिंदगी लगा ले, कैफ में बड़ा। एक और दलील मेरे ज़हन में आ गई, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ए लोगो, हाँ मेरे सहाबा को जज़ाकल्लाह, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, अगर तुम में से कोई और पहाड़ के बराबर भी सोना, अब देखो ना, और पहाड़ के बराबर सोना, बहुत बुरी किस्सा भी नहीं किया, ठीक है नहीं किया, कम में यह ज्यादा है, लेकिन कैफ में मेरे सहाबा के अशर तक भी नहीं पहुंच सकता। तो इमाम नानोती का मकसद यह है, खुदा को मानो यार, कोई खुदा का खौफ करो यार, क्यों खामखा में सही बात को लेकर तुम उसका पतंगर बना लेते हो यार। और बज़ाहिर की कैद लगी हुई है, हकीकतन नहीं, हकीकतन नहीं, हकीकतन ये अमल में भी नहीं बढ़ा हुआ। क्यों? एक तो मैंने सीधी सीधी बात बताई, कैफ फिर भी इसके पास है, एक और अंदाज, हकीकतन कैसे नहीं बढ़ा हुआ। अमल इल्म का तकाजा करता है, अमल इल्म का तकाजा करता। मैं जब मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना इलियास गुमन साहब दामद बरकात नालिया यहां थे, तो उनके यहाँ ये बैंस कॉलोनी में कोर्स होता था, हम पढ़ाने जाते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। उनके कमरे में बिला रोक टोक सिर्फ मैं ही आ जा सकता था, भाई किसी को भी आने जाने की इजाजत पहले इजाजत देनी पड़ती थी। इस तरह उनके कमरे में रात को सिर्फ मुझे ठहरने की इजाजत थी, कि दफा ठहरा, वो भी उन्होंने बहुत जिद की तो मैं ठहर गया। तो मुझे उनके वो साथी फरमाते, कितना खुश नसीब आदमी तू जो है ना, क्योंकि मैं एक पहले दूसरे दिन ही पढ़ा लेता, फिर मैं चला जाता, फिर प्रोग्राम में दुआ में आपने शिरकत करनी है, तो मैं कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब तो हम कहते हैं हर दिन ही वहां शिरकत करते जो है ना जब होते तो कदर नहीं करते लोग, और जब नहीं होते तो फिर अरमान करते लोगों का जो है ना। तो हमने खाना खाया, अच्छा हजरत मुतकल्लिम इस्लाम सब रोटी वगैरह नहीं खाते, सालन वगैरह वो चम्मच से खाते हैं, खुराक में होता है, तो रोटी नहीं खाते जो मैंने देखे वल्लाह आलम जो है। तो उन्होंने मुख्तसर सा खाने में तो बिरयानी और पत्नी क्या क्या रखा हुआ था कहते जो ना, वो उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी, अपना जो देसी खाना था, सब्जी वगैरह बनी थी कहते जो ना, उसको खा लिया और कमरे में चले गए। अच्छा मैं भी खाना खा कर जो है ना वो कमरे में जाने लगा, तो एक तरफ मुफ्ती शफीउल्लाह उनका खास आदमी खड़ा हुआ था, और एक तरफ कोई नया कोई होगा। ऐसे मौके पर चमचे वगैरह तो बहुत आ जाते हैं, मुझे तब शक्ल भी याद नहीं है, उससे मुझे ऐसा रोक लिया, अब अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा अच्छा, मुफ्ती शफीर ने कहा नाम मुराद है, यहाँ का उस्ताद है, तुझे अंदर करवा देगा, ये कैसे अंदर नहीं जा सकते जो है ना। उससे कहो जी मैं माफी, मैं आपके पाँव पर मैं माफी चाहता हूँ। मैं कहा नहीं आपको पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, जाइए जाइए ज्यादा कोई अंदर कुछ मत कीजिएगा, मैं माफी। मैं कहा नहीं। अब देखो जब तक इल्म नहीं था, ताजीम मेरा हक था कि मैं वहां का उस्ताद था, अमल भी नहीं था, ये कहना चाह रहा हूं। जब इल्म आया तो अमल इल्म का ताबे है, जितना इल्म होगा उतना अमल भी होगा। और अंबिया अल्लाह की सबसे ज्यादा मार्फत रखने वाले हैं, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं, तो अमल भी इन्हीं के बाद सबसे ज्यादा होगा जो है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, खुद इमाम नानोती ये कहते कि यहाँ हर आलिम मुराद नहीं है, बल्कि वो आलिम मुराद है कि जो अल्लाह की मार्फत रखता हो। इसलिए कि जितनी ज्यादा मार्फत होगी उतना अमल का जज्बा पैदा होगा जो है ना। तो हकीकत भी अंबिया अमल में उम्मतियों से ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्लाह की मार्फत इल्म की वो अंबिया पे, और अमल ये इल्म का तकाजा करते। तो जब इल्म सबसे ज्यादा इनका, तो अमल भी सबसे ज्यादा। अगर जब बजाय तुझे ये उम्मती ज्यादा नजर आ रहा, हाँ और खुदा का खौफ करो, मैं किधर जाऊं, क्या इबारत थी और क्या तुमने बना दी है। हमारे बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे गली के अंदर एक सुजुकी थी, लाल रंग की। उस सुजुकी का शीशा नहीं था, उसमें कोई लाइटें नहीं थी, दरवाजों में लॉक नहीं थे, टायर थे बट टायर भी पंचर थे, बाकी कुछ भी नहीं था। और बैठने के लिए बस एक पुरानी सी सीट थी और एक स्टीयरिंग था, बाकी डैशबोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर लिखा हुआ था एक हम हजार गम, ये लिखा हुआ था। तो एक हम हजार गम, किस किस गम को रोए मेरे भाई, खून जिगर को रो, दर्द दिल को रो या खून जिगर को रो, मैं एक आखिर किस किस गम को रोऊंगा कहते जनाब। कितनी जबरदस्त इबारत है और क्या हशर तुमने कर दिया यार। अगर फिर भी तुम्हें चैन नहीं आता कि नहीं इस पे गुस्ताखी है, उम्मतियों को अमल में बढ़ा दिया, तो जरा अपने घर की जरा थोड़ी सी, मैं जरा किनारे किनारे से घुमा कर आता हूं, ज्यादा नहीं अंदर, फिर परेशान हो जाएंगे ना, किनारे किनारे से घुमा कर आता हूं, जरा अपने घर का हाल देखो। तफसीर नईमी मुफ्ती अहमद यार गुजराती, तफसीर नईमी उसकी। अच्छा इसका नाम अहमद यार नहीं था, इसका नाम मंजूर था, मंजूर इसका नाम था, और जियाना हिंदुस्तान का रहने वाला था, मुफ्ती भी नहीं था ये। बस फिर यहां आकर
یہ گجرات میں رہنے لگا، اس کا نام بھی احمد یار ہو گیا، اور وہاں سے نعیمی چونکہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب جو مولانا مظہر خان صاحب کے خلیفے ہیں، مولانا مظہر خان کا شاگرد کوئی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اس نے کبھی پڑھایا نہیں ہے نہ خود کس سے پڑھا ہے نہ کسی کو، لہذا کوئی شاگرد نہیں ہے، یہ جھوٹ، ایسی انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی، جھوٹ ہے بالکل، ثبوت دیجیے کہاں پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، کدھر پڑھا ہے، سب جھوٹ۔ حال یہ تھا پڑھانے کا، ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت جی کے پاس وقت نہیں تھا، مصروف ہوتے تھے نا، تو اس لیے کچھ بھی وقت نہیں تھا ان کے پاس، بہرحال انہوں نے ایک قصہ بنایا کہ اب یہ لوگ تنگ تو کر رہے ہیں کہ کسی کو پڑھایا کیوں نہیں جو ہے نا، تو کہا بعض شاگردوں نے ایک دفعہ خواہش کی پڑھنے کی، میں نے کہا ٹھیک ہے آؤ، لیکن حضرت جی کی تعظیم میں حدیث کا حال دیکھے، تعظیم حدیث کا حال دیکھے کہ خود بھی بخاری پڑھا رہے ہاتھ میں کھڑے ہو کر لے کر، اور طلبہ بھی کھڑے ہو کر ہاتھ میں بخاری لے کر پڑھ رہے ہیں، کہتے جو ہے نا، حالانکہ آپ نے پڑھا ہوگا شفا کے اندر بھی اور ابن حجر کی شرح نخبہ کے اندر بھی امام مالک کا قول ہے کھڑے ہو کر حدیث پڑھنا حدیث کی توہین ہے، کہتے جو نا کھڑے ہو کر حدیث پڑھانا حدیث کی توہین، اور پھر ہو بھی کتیبی کتب خانے کی حدیث، کتیبی کتب خانے کا نسخہ ہوتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کتنی دیر تک کھڑے ہو کے پڑھایا اسے، کہتے جو نا عقل کو ہاتھ لگاؤ چل، بس ہم تو کچھ کہتے نہیں، پھر کہتے حالت کے خلاف آپ ہمارا حرکت ایسی، اب ہم کیا کریں میرے بھائی، تم ہمارے اکابر کے ایمان پر مناظرے کرو اور ہمیں حالت بیچارے کہ اتنی تھوڑی بہت باتیں کرنے کا بھی حق نہ ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا تفسیر نعیمی میں اندر کیا لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 276 ہے، اس میں لکھتا ہے اگر نبوت اعمال پر ملتی تو شیطان کو ملنی چاہیے تھی، شیطان ایسا باعمل ہے، ایسا بزرگ ہے، ایسا اللہ سے خوف خدا رکھنے والا، ایسا ڈرنے والا ہے کہ اگر نبوت کبھی شیطانوں میں تقسیم ہوتی ہے تو شیطان تو ہمارا پکا پکا نبی تھا میرے بھائی، یہ کہہ رہے کہتے جائے تمہارے ہاں شیطان عمل میں اتنا چلا جائے کہ نبوت کے درجے پر فائد ہو سکتا ہے، تو امتی بیچارہ اتنے اعمال نہیں کر سکتا۔ نجیب العمر صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب ہے بریلیوں کی شیطان سے محبت، ان کو ہر جگہ شیطان، علم غیب ہے تو شیطان کے پاس ہے، حاضر ناظر ہے تو شیطان کے پاس ہے، نبوت تقسیم ہو رہی ہے تو شیطان کے پاس ہے، توحید پرست ہے تو شیطان کے پاس ہے، مولانا مظہر خان صاحب نے حقہ پینا تھا تو شیطان کے ساتھ بیٹھ کر پینا تھا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں میں جب حقہ پیتا تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، کیوں کہ شیطان اس چیز میں شریک ہو جاتا ہے، اس پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو حقے میں میرے ساتھ شریک ہو جاتا ہے جو ہے نا۔ تو آپ کیا تو شیطان اتنا بعمل ہے کہ اسے نبوت بھی مل سکتی ہے میرے بھائی، اتنا بڑھ سکتے ہیں اعمال میں۔ اس سے بھی واضح عبارت مولانا ابو الحسنات صاحب کی، لاہور والے، ان کی تفسیر الحسنات ضیاء القرآن پبلیکیشن ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 445 ہے، کہتے ہیں داؤد علیہ السلام نے عرض کیا تیری مخلوق میں مجھ سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو تو مجھے بتاؤ۔ داؤد علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں یار، وہ اللہ سے کرے اے اللہ مجھ سے زیادہ کوئی ذکر کرنے والا تیری مخلوق میں ہو تو مجھے بتائے، تو اللہ نے مینڈک کے متعلق وہی فرمائی، یہ تجھ سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے معاذ اللہ۔ اب تم نبی کے اوپر مینڈک کو ترجیح دے دو کہ مینڈک نبی سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے، آہا یہ تصوف کی بات ہے بابا، یہ مولوی ساری تو آپ ہی کو سمجھ نہیں آتی، یہ اس کے عقل میں نہیں آئے گی، یہ تصوف کی بات ہے۔ اور امام نانوتوی رحمہ اللہ اتنی قیمتی بات کرے، بظاہر کی قید بھی لگائے، اشارتاً بتا بھی دے کہ پھر بھی عمل میں نہیں بڑھ سکتا، چنانچہ یہ میرے پاس حجت الاسلام ہے امام نانوتوی رحمہ، ہاں یہ دیکھیں نا اصل، دیکھیے عبارت اصل اس طرح ہے، انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات، اس میں بسا سو صورت عمل میں، یہ اصل نسخے میں موجود نہیں ہے جو ہمارے پاس رحیمیہ دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے، یہ دیکھیں یہ حجت الاسلام ہے میرے پاس امام نانوتوی رحمہ اللہ کی، صفحہ نمبر 145 ہے، اس میں لکھا ہے امتی آدمی بس اوقات مجاہدہ و ریاضت میں ان سے بڑے ہوئے نظر آتے ہیں مگر مرتبے میں انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتے میرے بھائی، بظاہر بڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ میں نے بتا دی، لیکن مرتبہ پھر بھی کن کا رہتا ہے، انبیاء کا رہتا ہے، آپ تو مرتبے میں بھی بڑھا رہے ہیں۔ وجہ اس کی بذو شرف علم و تعلیم، اور کیا ہے الغرض بوجہ علم و تعلیم ہی انبیاء امتیوں سے ممتاز ہوتے ہیں، بوجہ عبادت ظاہری و ریاضت جسمانی ممتاز نہیں ہوتے، مگر جب یہ ہے تو پھر علم عمل سے بھی ضرور افضل ہوگا الاخر۔ تو بظاہر ہے، بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن افضل پھر بھی کیا ہے، نبی ہے، اور یہ عمل بھی بظاہر ہے بڑا ہوا نظر آ رہا ہے، حقیقتاً تو عمل بھی نبی کا
बेतबार कैश भी और बेतबार इल्म चूंकि नबी के पास सबसे ज्यादा है तो अमल भी उसके पास सबसे ज्यादा होगा। जी पढ़े अब जब ये बात हल होगी मेरे भाई, अब ये पढ़े जी। बल्कि बढ़ जाते हैं और क़ुव्वत अमली और हिम्मत में अंबिया उम्मतियों से ज़्यादा भी हों, तो ये माना हुए कि मकाम शहादत और वस्फ़ शहादत भी उनको हासिल है। एक इश्काल का जवाब है। इश्काल यह है कि भाई आपने तो कहा कि असल कमाल अंबिया का कमाल इल्मी है, इल्म के अंदर उम्मतियों से बड़े होते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अमल जैसे शहादत वगैरह, क्योंकि आपने 4 ग्रोह बनाए ना, उनमें से शहीद को आपने अमल का मंबा करार दिया और नबी को इल्म का मंबा करार दिया। तो अगर अमल में भी नबी उम्मती से बढ़ जाए तो का कोई मसला नहीं। देखो हर इंसान की कुछ सिफात होती हैं, लेकिन उस पे गालिब चंद सिफात होती है। मिसाल देंगे, शाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह, दोनों इल्म और अमल के मजमुआ थे कि नहीं थे, लेकिन इल्म में मशहूर थे, इल्म गालिब था। मौलाना रशीद गंगोई साहब रहमहुल्लाह, वो इल्म और अमल के मंबा थे कि नहीं यार, मजमुआ थे कि नहीं, लेकिन फिक़्ह इल्म गालिब था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, इनके बारे में आता है कि फिक़्ह हम्बली के फ़क़ीह थे, और बहजतुल असरार के अंदर शतरूफी रहमहुल्लाह ने, और इस तरह अब्दुल वहाब शारानी रहमहुल्लाह ने अत-तबक़ातुल कुबरा के अंदर इनके कई इल्मी चुटकुले बयान किए, इल्मी मसाइल बयान किए। लेकिन क्या आप इनको फ़क़ीह के सिफत से जानते हैं या सूफी और बुजुर्ग की सिफत से जानते हैं? ये तसव्वुफ़ वाला सिफत पर गालिब आ गया। तो अगरचा अमल में भी अंबिया ज्यादा होते हैं, लेकिन असल जो चीज उन पर गालिब होती है, जिसकी वजह से उनको कमाल होते हैं, वो क्या होता है? इल्म होता है। ये मसला यहां समझाना चाह रहे जी। तो ये माना हुए कि मकाम शहादत और वस्फ़ शहादत भी उनको हासिल है, लेकिन गालिब क्या है? गालिब इल्म है। लिहाजा असल कमाल हम उनका क्या शुमार करेंगे? इल्म क्या करेंगे? शुमार करेंगे जी। मगर कोई मुलक्कब होता है तो अपने औसाफ गालिबा के साथ मुलक्कब होता है। तो अगर चाहिए तमाम अमल के दर्जात भी इनको हासिल है, लेकिन ज़ाहिर है जैसे बहुत से इंसानों के अंदर बहुत सी सिफात होती है, लेकिन खास सिफात को बाकी सिफात पर क्या हासिल होता है? गलबा। इस तरह अंबिया इन अमली सिफात से भी मुत्तसिफ है, लेकिन वो जो इल्म वाली सिफत है उनमें क्या है? गालिब है। देखो जैसे मिसाल दे रहे मिर्जा जाना ने जान, जिनको मिर्जा मजर जान भी कहते हैं, तो ये यकुम बुजुर्ग आदमी, इनके वालिद साहब का नाम मिर्जा जान था। आलमगीर औरंगजेब आलमगीर रहमहुल्लाह को जब पता चला, और ये उनके मुसाहिब थे, उनके दरबार नशीन थे मिर्जा जान उनके वालिद थे, तो जब इनको पता चला कि मेरे दरबार के बुजुर्ग आदमी के यहाँ बेटा हुआ है, तो उन्होंने बेटे का नाम कहा कि तेरा नाम मिर्जा जान है तो बेटे का नाम जान होगा। जान की क्या है? जान है। तो वो जाने जा, फिर बाद में जाने जाना, क्या इधर लिखा है? जाने जाना मशहूर हो गया जो ना, और बाद में मिर्जा मजर जा मशहूर हो गया कहते जो ना। बहुत बड़े बुजुर्ग नक्शबंदी सिलसिले के अल्लाह के वली थे, दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में फोत हुए, और आपका मकबरा वहीं मरजा खलाइक जी। शाह गुलाम अली ये मिर्जा मजर जाना के मुरीद थे, उनके हाथ पर बैत हुए, खिलाफत हासिल की, और करीबन 80-82 साल की उम्र में सफर के महीने में 1340 के अंदर इनका क्या हुआ? इंतकाल हुआ। अल्लाह, क्या आजी थी शाह गुलाम अली रहमहुल्लाह की। एक दफा कुत्ता इनके घर में आया, फरमाया ए अल्लाह, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरी मखलूक, तेरे दोस्तों का, तेरे बुजुर्गों का वास्ता देकर तुझसे बख्शिश तलब करूं। ए अल्लाह, इस कुत्ता ये भी तेरी मखलूक है, इसके वास्ते से मेरी बख्शिश कर दे जाए। ऐसी आरसी थी। नाम हम आज भी निकल ले रहे। शर्म हया का ये हाल था कि शर्म की वजह से आईने में अपना चेहरा भी नहीं देखते थे कि मुझे हया आती है इससे, तो औरों पर क्या नजर पड़ती। तो ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग गुजरे जी। मिर्जा जाने जाना साहब रहमहुल्लाह और शाह गुलाम अली साहब रहमहुल्लाह और शाह वलीउल्लाह साहब रहमहुल्लाह और शाह अब्दुल अजीज साहब रहमहुल्लाह, दोनों चूंकि मारूफ है, आखिर के लिहाजा मैं इनका जिक्र नहीं कर रहा, आप खुद इन सबको जानते जी। चारों साहब जामे बैनुल फ़क्र वल इल्म थे। पर मिर्जा साहब रहमहुल्लाह और शाह गुलाम अली साहब तो फ़कीरी में मशहूर हुए, और शाह वलीउल्लाह साहब रहमहुल्लाह और शाह अब्दुल अजीज साहब
साहिब इल्म में देखो इन चारों के पास इल्म भी था, अमल भी था, लेकिन दो फकीरी में अमल में मशहूर हुए इसलिए कि वो फर्स्ट गालिब थी, और दो इल्म में, ये नहीं कि जो इल्म में मशहूर उसके पास अमल नहीं था। इस तरह अंबिया इल्म अमल दोनों के जामे होते। बाबा मिसाल देकर खुद बता रहे कि मेरा वो अकीदा नहीं है जो तुम मेरे तरफ मंसूब कर रहे हो कि मैं माज़अल्लाह अमल में नाकिस समझता हूं अंबिया को। दोनों अमल में भी अंबिया जामे इल्म और अमल के होते हैं, लेकिन इन पर वसफ कौन सा गालिब होता है? इल्म का वसफ गालिब होता है। जी, वजह इसकी यही हुई कि इनके इल्म पर तो इनकी फ़कीरी गालिब थी और इनकी फ़कीरी पर उनका इल्म, अगरचे इनके इल्म से उनका इल्म या उनकी फ़कीरी से इनकी फ़कीरी कम ना हो। ज़मीरें तुमने बड़ी ज़बरदस्त पढ़ी हैं। जी, सो अंबिया अलैहिस्सलाम में इल्म अमल पर गालिब होता है, अगरचे उनका अमल और हिम्मत और कुव्वत औरों के अमल और हिम्मत और कुव्वत से गालिब हो। ये क्या बोल रहे? ये फारसी बोल रहे? ये ईरानी तुरानी बोल रहे? नहीं, ये तो अमल में उम्मतियों को बढ़ा दिया जाए। तो ये क्या बोल रहे हैं? सियाक और सबाक से बात को हटाकर मन माना मतलब पहनाना, फिर तो दुनिया में कोई भी चीज ईमान नहीं रहेगी मेरे भाई, माज़अल्लाह। जी, बहरहाल इल्म में अंबिया औरों से मुमताज होते हैं और मिस्दाक नबूवत वो कमाल इल्मी ही है, जैसा कि मिस्दाक सिद्दीकियत भी वो कमाल इल्मी ही है। सिद्दीक का काम क्या होता है? ये सिद्दीक फिर उस इल्म के और उस फाइल का काबिल होता है, यानी वो जो नबी के पास जो इल्म होता है उस इल्म को अखज़ करने वाला सबसे पहले कौन होता है? सिद्दीक होता है। तभी हर एक उस नबी पे उस नबी पर ईमान लाने के लिए मौज़े का तकाजा तो करता है, लेकिन सिद्दीक बगैर मौज़े के उस नबी पर ईमान लेकर आता है। जय, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो उस इल्म को जो नबूवत का कमाल था उसे अखज़ करने वाला, लेने वाला ये सिद्दीक होता है। जो है ना, इसलिए इसे उस नबी का यकीन करने के लिए किसी मौज़े और किसी दलील की हाजत और जरूरत नहीं होती। नहीं समझे? जब नबी का कमाल इल्म है, उस इल्म को अखज़ करने वाला सबसे पहला जो उसका काबिल है उस मंबा को, वो कौन है? तो नबी के जाने के बाद उसके मुसल्ले पर खड़ा होने वाला, उसकी मस्जिद नबूवत की जिम्मेदारी को संभालने वाला, उसकी नियाबत करने वाला कौन होगा? सिद्दीक। सिद्दीक होगा। नानोती हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत बिला फस्र वहां से साबित कर रहे जहां तुम्हारा वाम गुमान भी नहीं है। कोई कुरान की आयत पढ़ी, किसी हदीस की आयत पढ़ी? काफिर के सामने भी सिद्दीक को सिद्दीक अकबर साबित कर सकते हो और मुसलमान के सामने भी साबित कर। यही तो उलूम नानोती है कि जो डायरेक्ट अकल के तरीके में गुस्सा है, जो ऐसी मजबूत बात करता है कि ना काफिर उसका इनकार कर सकते ना मुसलमान। शहीद अमल का मंबा होता है, शहीद अमल का मंबा होता है। तो जब इल्म के मंबे से उस काबिल ने इल्म ले लिया, अब उस इल्म पर अमल करवाने के लिए एक आमिल चाहिए, एक शहीद चाहिए, तो फिर सिद्दीक के अकबर के बाद सबसे पहले किसको आना चाहिए? शहीद। और शहीद कौन है? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। लिहाजा सिद्दीक के बाद नंबर किसका है? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। तभी तो पाक पैगंबर ने फरमाया, क्यों हिलता है? तुझ पर एक सिद्दीक खड़ा है और एक शहीद खड़ा है। नबी के नबूवत के बाद इस निजाम को चलाने वाले दो बंदे खड़े, जैसे नबी की मौजूदगी में अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता, इसी तरह उसके नायबों के और नायबों की मौजूदगी में भी जमीन हिल नहीं। तो अब उमर फारूक का नंबर क्या हो गया? खुद ब खुद तीसरा हो गया। कुछ समझ आती कि नहीं आती? नबी के बाद तीसरा, यानी नबी के साथ तीसरा और नबी के अलावा दूसरा। बात समझ? तभी अब समझ आया कि नबी के बाद सिद्दीक और उमर कैसे एकदम से आ गए? क्योंकि एक इल्म का काबिल है, दूसरा अमल का काबिल है, जो है ना। और नबी इल्म और अमल दोनों का मजमुआ है। तो नबी इल्म और अमल जब दोनों का मजमुआ है और ये फाइल है, यानी वो इल्म और अमल दोनों को जाहिर करने वाले, तो वो ज़ुहूर भी तो किसी मजहर में होना चाहिए ना। तो सिद्दीक अकबर इल्म का ज़ुहूर है, फारूक आज़म अमल का ज़ुहूर है। कुछ समझ आती कि नहीं आती यार? ये दो बुनियादी मॉडल हैं जो हुजूर दुनिया के सामने पेश करके गए कि जो मेरे दो कमालात थे, इल्मी और अमली। हर इंसान के पास जो कमाल होता है, वो कमाल जब तक उसके अंदर है, किसी को उसके कमाल का पता नहीं चलेगा। मैं अनवार में पढ़ाता था, जामिया अशरफिया में। हमारा दर्स मौलाना अब्दुल रशीद साहब रहमहुल्लाह, उनकी कब्र मुनव्वर करे, शेख हदीस साहब, उन्होंने दर्स रखा। पढ़ाकर मैं आया, असर में तुलबा आए अनवार में, उस्ताद जी हम आपसे माफी चाहते हैं, उस्ताद जी हमें माफ करते। यार रब्बे सुभान, मेरा तो पहला दिन था आज,
ना मैं तुम्हारा बाकायदा मुदरिस हूं, ना मैंने बाकायदा पढ़ाया। आज पहला दिन और कौन सा ऐसा कुफर तुमसे हो गया, मुझसे हो गया, जो तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? का उस्ताद जी हमें बताया गया था कि बड़े बड़े शयूख पढ़ाने के लिए आएंगे, बड़े बड़े उलमा पढ़ाने के लिए आएंगे। मैं उस टाइम नौजवान था, अब तो खैर दाढ़ी सफेद होगी, नौजवान खैर अभी भी हूं, लेकिन दाढ़ी सफेद होगी जो है ना। कराची में हाँ बूढ़ों की दाढ़ी बाद में सफेद होती, जवानों की पहले सफेद हो जाती है। तो जब आप आए तो हमने कहा ये क्या मामला है मेरे भाई, ये कौन आ गया? हमें तो कहा था बड़े बड़े शयूख है, तो हम उम्र आदमी है मेरे भाई। लेकिन जब आपने दर्स दिया तो हमने कहा यार रब्बी सुभान, ये तो जितने जमीन के ऊपर नजर आते उतने कहीं और भी ऊपर आ गए थे जो है ना। तो इसलिए हम माफी मांगने के लिए आए। तो जब तक कोई इल्म कोई अमल आपके सीने में पोशीदा है, मुझे क्या पता लगेगा कि आप कौन हैं? पाक पैगंबर इल्म अमल दोनों के मंबा है, दोनों के मजमूए हैं। उनके कमाल के इजहार के लिए जरूरी था कि जो सिफत इनके पास है उसका ज़ुहूर हो, और वो ज़ुहूर सिद्दीक और फारूक की सूरत में आया। अब कारीगर की कारीगरी जितनी कामिल है उतना कारीगर कामिल है, और कारीगर की कारीगरी में जितना नक्स है उतना कारीगर नाकिस है। हाय हाय हाय। और बेईमाना तो सिद्दीक अकबर को गाली देकर, उमर फारूक को गाली देकर गोया रसूलुल्लाह को गाली दे रहे हैं ना, वो नाकिस है, उनमें नक्स है। तभी तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं साहबा के बारे में, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। ये तो मैंने तैयार की है। मुफ्ती हसन साहब दामद बरकात मालिया, लाहौर में हमारा जलसा था, मेरे बाद उनका बयान था, तो उन्होंने एक अजीब गरीब बात फरमाई। फरमाया दुनिया में कोई उस्ताद ये नहीं कह सकता कि मेरे सारे शागिर्द कामयाब हैं, कोई नहीं कह सकता, कोई ये दावा नहीं कर सकते सिवाय पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो ये दावा कर सकते हैं कि मेरा बड़ा शागिर्द है तो भी कामयाब है, छोटा शागिर्द है तो भी कामयाब है। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना आई अल जन्नह, जो है ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा ले लिया, सब कामयाब है जो है ना। तो इसलिए सिद्दीक पर एतराज करना, उमर पर एतराज करना, हुजूर की वो जो कमाल की दो सिफात थी जो हर दौर में हर शोबे में कमाल समझा जाता है, इल्म और अमल, उसके इजहार पर एतराज है और दरअसल रसूलुल्लाह पर एतराज है। इसलिए सहाबा का दुश्मन नहीं है, उनका क्या कसूर है, वो तो इस रसूलुल्लाह के तैयार करता है। सहाबा का दुश्मन दरअसल रसूलुल्लाह का दुश्मन है कहते हैं, और जो रसूलुल्लाह का दुश्मन है उसके ईमान की गवाही हम नहीं दे सकते। आपने देनी तो दे, तो आपकी अपनी मर्जी है मेरे भाई, बात समझ आ? इसलिए इन्हें असल बुग़्ज़ रसूलुल्लाह से, सहाबा तो महज़ आड़ इनके लिए। बात समझ आ रही जी? अब पढ़ो जरा। चुनांचे लफ्ज नबा और सदका भी जो माखज़ औसाफ कैसे मिलते हैं? कोई ना कोई खबर होगी तो उसकी तो तस्दीक भी करनी होगी ना यार। तो नबा खबर, सदका सिद्दीक खबर के बाद सिद्दीक ने आना है, नबा के बाद सिद्दीक ही नहीं आना है, किसी और कोई और नहीं आ सकता मेरे भाई। ये उलूम नानोती है। काश के वक्त होता जो ना जी। इस बात पर शाहिद है नबा खुद खबर को कहते हैं जो अक़साम में उलूम या मालूम में से है, और सदका औसाफ इल्म में से है। पढ़ो जल्दी पढ़ो बेटा। पर नबूवत और सिद्दीकियत में वही फर्क फ़ालियत और काबिलियत है जो आफ्ताब और आईने में वक्त तक़ाबुल मालूम होता है। यार ये बात आ गई है, लेकिन चलो हम इसको पढ़ लेंगे, टाइम हो गया यार।